Students, now let's start our next part of this experiment, and we are going to perform this experiment. In the previous lecture, you have studied about the principal law of parallelogram of vectors, and you have derived the formula r is equal to under root p square plus 2q square plus 2pq cos theta. And so next part is going on, and we are performing. So you are seeing on the screen P and Q, two vectors, two forces acting simultaneously at the point O. Here you are seeing here, and you are seeing here, and the resultant of this vector is r is equal to diagonal of the parallelogram OC. Okay. We have studied this point. If we twist this figure, you will found this type of the figure. Here you are saying this is the same figure. I twist it, and you will find out this figure. This is the P. This is a P. This is Q, and this is a O. And P and Q acting simultaneously at the point O, and the angle between P and Q is theta. Suppose that. Here also theta, and next you are seeing here. Okay, and now if suppose आपने इसको देख लिया, so the diagonal of the parallelogram, the resultant of P and Q is equal to diagonal of the parallelogram R. Here same figure, केवल मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है बस. अब थोड़ा सा इस पे भी आइए, देखते हैं. यहाँ पर यू आर सीइंग दिस फिगर. देयर इज पी एंड क्यू. एक आपकी ये पुली है, एक आपके टू पुलीज के थ्रू, एक W1, एक ये पुली है, और इसके थ्रू W1 आपको हैंग कर दिया गया है, और एक दूसरी पुली है सेकेंड पी ये आपकी, और इसके थ्रू W2 हैंग कर दिया गया है. ओके, बट एक थर्ड वे W3 हमने हैंग कर दिया. But in conditions of you are seeing that W1 and W2 acting simultaneously because gravity, the gravity is acting. Okay, so you are seeing the picture very clearly, and now you are seeing here the force P acting in upward direction. Q is also acting in upward directions, but R is acting in the downward directions. And you know, if two forces acting upward direction, R is acting in downward directions, it means the forces are balanced. It also it means the resultant of the P and Q is equal to the resultant of the R. क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, क्योंकि दो फोर्सेस अपवर्ड की ओर डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, और एक ये फोर्स आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर एक्टिंग कर रहा है, और बैलेंस्ड है. एंड ये नाइदर मूव अपवर्ड नाइदर मूव डाउनवर्ड, इज मीन कि यहाँ पर आपका ओ पॉइंट पर जंग जो है बैलेंस्ड है. तो आप देखेंगे दिस इज ए पी एंड दिस इज ए क्यू. ओके, दिस इज ए पी एंड दिस इज क्यू, सेम एज इट इज दिस फिगर, सेम एज इज दिस फिगर. ओके स्टूडेंट्स. Okay, and now same as always you will compare this point, and you are seeing that P and Q. So if we draw this parallel to this, and यानी कि हम OA के पैरेलल पॉइंट, यहाँ पर सपोज कोई एक पॉइंट A है, और OA पैरेलल टू यहाँ पर कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, और एक पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करें. वी ड्रॉ अनदर, दिस इज ए पैरेलल, दिस इज ए पॉइंट AOB एंड दिस इज ए पॉइंट C, एंड इफ यू ड्रॉ diagonal of its, so the resultant according to parallelogram law vector, the resultant of the P and Q is equal to R. रिजल्टेंट ऑफ the P and Q is equal to R होगा. जो रिजल्टेंट P और Q का होगा वो R होगा, और जो ये R होगा वही R ये भी होगा, क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. तो जो P और Q का रिजल्टेंट होगा वही ये इसका रिजल्टेंट होगा, और जो इसका और P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वही इसका रिजल्टेंट होगा. इट मीन्स कि जो ये रिजल्टेंट होगा वही आपका डायगोनल हो जाएगा. तो इसमें कंडीशन में आप कह सकते हैं कि हम टू फोर्सेस हम एक्ट कर रहे हैं, टू फोर्सेस हम
हैंग करेंगे, एक और ये दो, तो इसके इफेक्ट से पी और क्यू बनेगा, पी और क्यू फोर्सेस बनेगा। और थर्ड फोर्थ, दिस इज द अननोन वेट, दिस इज द अननोन वेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द अननोन। सो फाइनली वी विल फाइंड द शेप ऑफ दिस पी एंड क्यू एंड इसको हम लोग ट्रेस कर लेंगे एक पेपर में और उसके बाद एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। और पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद जैसे ही पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाएगा आपका, उसमें हम इसका जो ओसी होगा, एक डायगनल जो होगा, वही डायगनल आपका इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक इस पे चलते हैं अपने विकास जी, इस जगह एक मिनट। नाउ you are seeing the Gaussian operators and there is W1, this is a W1, this is a pulley W2 and this is a W2 and this is an unknown weight and you are seeing just like as a picture here, ये आपका P और ये Q, तो सेम आपका यहाँ पर भी होगा। ये आपका इस फोर्सेस के अकॉर्डिंग ये आपका P और ये आपका Q, ओके, और ये आपका R। फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इट मीन्स कि जो ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में आपका हो रहा है, तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो जो W1 W का ये आपका W1 हुआ और ये W1 W2, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा P एंड Q का वही R हो जाएगा। ओके, इफ़ वी ट्रेस द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पर ये पोजीशन ले लें और इसको हम लोग ट्रेस आउट कर लें पेपर पर, ये जो वाइट शीट लगी उस पेपर पर, और उसके बाद फिर हम उसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करें। तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगनल होगा वही डायगनल रिजल्टेंट हो जाएगा P और Q का, वही वेट का हो जाएगा। ओके, सो नाउ आप ये देखिए वेट कितना है यहाँ पर, 50-50 के 3 वेट लगे हुए हैं, 1 2 3। मैं थोड़ा और क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 50-50 के 3 वेट लगे हुए हैं, इधर भी 50-50 के 3 वेट लगे हुए हैं, 1 2 3। दिस इज़ अ W2 और ये आपका W, इसका 1 2 3 4 वेट लगे हैं, तब इसका 200 है। ये अननोन वेट है, हमें इसको मालूम नहीं है, बट यहाँ पर 150 लगा हुआ है वेट और इधर भी 150 लगा हुआ है, इधर भी 150 लगा हुआ है, ठीक है ये। तो आइए इसको ट्रेस आउट करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ये आपका ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को मैं यहाँ पर रखूँगा। विकास जी थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, कम विकास जी, इसको ऐसे पकड़ लीजिए, इसको जैसे मेरा हाथ पकड़ लीजिए इसको। चलिए देखिए, ये मैंने ये पकड़ रखा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका इमेज दिख रहा होगा स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का इमेज दिख रहा है ना। तो मैं उस स्ट्रिंग के इमेज को मैं थोड़ा सा हल्का से और नीचे लाइए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बस 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 बस। तो इस स्ट्रिंग का जो इमेज होगा और थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, थोड़ा सा ऊपर लाइए और हल्का सा और ऊपर ले जाइए थोड़ा सा। यस यस। इस स्ट्रिंग में देख रहे हैं कि ये एक लाइन कटर हो रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और दूर ले जाकर कैमरे को
आप इमेज देख रहे हैं स्ट्रिंग का, और थोड़ा ऊपर ले जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ और ऊपर और ऊपर और ऊपर, बस। तो स्ट्रिंग का इमेज ये दिख रहा होगा आपको ये, और जहाँ एक कट हो रहा है मैं वहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ। तो आइए इसको लगा कर देखते हैं हम। ये मैंने पॉइंट को लगा दिया, थोड़ा सा और नीचे लाइए, हल्का सा, और हल्का और नीचे और नीचे और नीचे, बस बस। अब मैं दूसरा पॉइंट लगा, बस बस। ओके, बस हो गया, बस हटा लीजिए। एक मिनट, थोड़ा और नीचे लाइए, हल्का सा। हाँ, हो गया। ओके, अब ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, इस पॉइंट्स को थोड़ा सर्कल कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ये सर्कल कर लिया उस पॉइंट पर। ओके, अब इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। नाउ वी रिमूव, वो लाइट ड्राइंग बोर्ड पर वी रिमूव द पेपर फ्रॉम द now we join the points, this point to here, this point to this, and the point. So this the line intersect at the point, the line intersect at the point O. Okay, now here this is the P, this is एक आपके फोर्सेस इधर लग रहे हैं, दूसरा फोर्सेस यहाँ लग रहा है, और एक ये R लग रहा है। ओके, और फिर हम एक बार ऑपरेटर्स पर हम आपको लेके चलते हैं और इससे टैली कराते हैं आपको। ये आपका कितना है, 50 50 150, इधर भी 150, आपको रिमेंबर, आपको याद होगा। तो ये जो हमने फिगर बनाया है, तो हम स्केल ले लें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ग्राम। सो हम लोग स्केल ले करके इसमें ड्रॉ करते हैं। लीजिए कैसे, पकड़िए इसको। नाउ स्केल यू कैन राइट हियर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 ग्राम, 50 ग्राम। सो 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 ग्राम। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड ये, दिस इज अ P पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट A, एंड दिस इज अ पॉइंट B, एंड वी ड्रॉ परपेंडिकुलर AB. Up now this is a OA and this is a OB. Now we draw a parallel line OA. कहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से OA पैरेलल टू BC, इसको ऐसे ड्रॉ रखेंगे, फिर इसको ये रख करके हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आई एम ड्राइंग द पैरेलल लाइन। एंड नेक्स्ट OB के पैरेलल भी ड्रॉ करेंगे हम। ये आपका C हो गया। ओके,
and now we measure the OC. Now we measure the